Today I am going to teach the grammar morphology. Okay. In English, there are two concepts, morphology and phonology. Phonology is the science of phoneme. Phoneme, that means sound. Phoneme, that means sound. It means phonology is the science of study of sound. Okay, like alphabets, etc. But morphology is the grammar, is the branch of science that studies morpheme. Morphology. This word has two words, morpheme and logos. Logos means science. Then what do you mean by morpheme? This word morphology has consist of two words, morpheme plus logos. Logos, that means science. Then what do you mean by morpheme? Morpheme means word. Morpheme means word. That means morphology means the word, the science of word. Okay. Science of word. So morpheme means word. So morphology is the branch in which the detailed study of word. Okay. So there is so much difference between morpheme and word. Word means any word that means a complete sense. For example, this word go, this smallest word, or this word I. This smallest word has a complete meaning. So this is called word. But this morpheme, add, what do you mean by add? Add, it has no meaning. Or ted or ul. So these words have no meaning. But these words are called as morpheme. This also is morpheme and this words is also morpheme. But when we say word, that means a complete sense. But when we say a morpheme, that means morpheme may have meaning, may not have meaning. मतलब मॉर्फीम वर्ड जो है तो मुकम्मल मीनिंग वाला रहता, लेकिन मॉर्फीम जो रहता उसमें मीनिंग आ भी सकती, नहीं भी आ सकती. जैसे कि ये वर्ड है आई, ये वर्ड भी है और मॉर्फीम भी है. लेकिन ये जो अल है, टेड है, एड है, ईडी, ओके, सो ये मॉर्फीम है बट ये वर्ड नहीं है. सो मॉर्फीम वो होता है कि मीनिंग आए या ना आए, लेकिन वर्ड वो होता है कि उसमें मीनिंग लाजमी होती है. ओके, सो आज हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे. मॉर्फोलॉजी में मॉर्फीम की स्टडी की जाती है. ओके, सो मॉर्फीम इट हैज टू टाइप्स. Morpheme has two types, free morpheme and bound morpheme. Now there are two types of morphemes, free morpheme and bound morpheme. Then what is mean by free morpheme? For example, look at this word, supported. In this word supported, it has consist two morphemes. Support is a morpheme and add is also another morpheme. So this word has two morphemes, support and add. Okay, so this support doesn't have depend on this add to create meaning. That means this support has free morpheme. But this add, it doesn't have self meaning. It don't have its own meaning until it has attached to the main morpheme, to the free morpheme. If it is attached to the free morpheme, at that time it can create a meaning. That means it is a bound morpheme. That means it is a bound morpheme.
फ्री मॉर्फिम और बाउंड मॉर्फिम क्या है? अब देखिए ये लफ्ज है सपोर्टेड, इसके अंदर सपोर्ट और एड ये दो मॉर्फिम छुपे वाले हैं। अब अगर हम ये दोनों मॉर्फिम को अलग अलग कर दे, सपोर्ट और एड, तो सपोर्ट के अंदर मीनिंग है, उसको ऐसा नहीं है कि एड लगाए बाद मीनिंग आएगी, सपोर्ट के अंदर मीनिंग है। लेकिन अगर हमने ये एड को अलग कर दिया तो इसके अंदर कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब है ये बाउंड है, बाउंडेड है, ये किसी पे डिपेंड है। इसीलिए फ्री मॉर्फिम को इंडिपेंडेंट मॉर्फिम भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट मॉर्फिम, फ्री मॉर्फिम को इंडिपेंडेंट मॉर्फिम कहा जाता है, आजाद है, किसी के बंधन में नहीं है। लेकिन बाउंड मॉर्फिम डिपेंडेंट है, बंधन में है। ये बाउंड मॉर्फिम को डिपेंडेंट मॉर्फिम भी कहा जाता है, मतलब ये बंधा हुआ है कि जब तक कि इसको मेन मॉर्फिम के साथ जुड़ाया नहीं जाता उसके अंदर मीनिंग नहीं निकलती। दैट मीन्स इट इज अ बाउंड मॉर्फिम। उम्मीद करता हूं यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। फ्री मॉर्फिम, बाउंड मॉर्फिम। फ्री मॉर्फिम ऐसा मॉर्फिम जिसको मीनिंग निकालने के लिए, मतलब निकालने के लिए किसी और पे मुनहसर रहने की या डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन बाउंड मॉर्फिम बंधा हुआ है, डिपेंड है, डिपेंडेंट है, वो किसी और पे मुनहसिर है। जब तक फ्री मॉर्फिम के साथ उसको जोड़ा ना जाए उसके अंदर मीनिंग नहीं निकलती। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक लफ्ज दे रहा हूं, अनएजुकेटेड। अब अनएजुकेटेड में तीन मॉर्फिम है, एक है अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड। अब ये एक वर्ड के अंदर तीन तीन मॉर्फिम छुपे वाले हैं। अब खाली अन को पढ़िए, अन का क्या मीनिंग है? कुछ भी नहीं है। या सिर्फ एड को पढ़िए, कुछ भी मीनिंग नहीं है। अब ये दोनों को हटा दो और एजुकेट को पढ़ो, एजुकेट में मीनिंग है। इसका मतलब ये हो गया फ्री मॉर्फिम। इसका मतलब ये एजुकेट जो है तो फ्री मॉर्फिम है। और ये अन और एड जो है ये फ्री मॉर्फिम पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इनको डिपेंडेंट मॉर्फिम या इसको बाउंड मॉर्फिम भी कहा जाता है। ओके, यानी जब तक कि इसको मेन वर्ड से जोड़ा ना जाए उसके अंदर मीनिंग नहीं निकलती। समझ में आया? फ्री मॉर्फिम और बाउंड मॉर्फिम क्या है? फ्री मॉर्फिम वो मॉर्फिम होता है जिसको मीनिंग निकालने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाउंड मॉर्फिम को मीनिंग निकालने के लिए, मतलब जाहिर करने के लिए, जब तक फ्री मॉर्फिम के साथ जोड़ा ना जाए तब तक उसके अंदर मीनिंग नहीं निकलती है। ओके, सो यहां पर देखिए, अब ये जो फ्री मॉर्फिम है, ये बाउंड मॉर्फिम जो है, बाउंड मॉर्फिम के कुछ किस्म हैं। बाउंड मॉर्फिम के फिर से किस्म आते हैं। बाउंड मॉर्फिम जितने भी हैं, बाउंड मॉर्फिम जितने भी हैं उनको हम अफिक्सेस कहेंगे। बाउंड मॉर्फिम जो होते हैं अफिक्सेस होते हैं। अफिक्सेस का मतलब क्या है? अटैच्ड, एक्स्ट्राज, एडिशंस, हम उसको कुछ भी नाम से बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड्स जैसे एक्सटर्नल या फिर एजुकेटेड। एजुकेटेड में ईडी जो है एक्स्ट्रा वर्ड लगे वाले, उसको एक्स्ट्रा मॉर्फिम लगे वाले, सो इसको अफिक्सेस कहा जाता है, या एक्सटर्नल्स कहा जाता है, या फिर एडिशंस कहा जाता है। ओके, एक्स्ट्राज कहा जाता है। सो जितने भी बाउंड मॉर्फिम है वो अफिक्सेस है। और अफिक्सेस के दो टाइप है। अफिक्सेस के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। फिर से मैं दोहराता हूं कि जितने भी बाउंड मॉर्फिम्स है उनको अफिक्सेस कहा जाता है। अफिक्सेस दैट मीन्स अटैच्ड। ओके, सो अफिक्सेस के दो टाइप है, प्रीफिक्स और सफिक्स। ओके, अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है? पहले शुरू, अफिक्सेस मतलब एक्स्ट्राज, अटैच्ड, एडिशनल वर्ड्स। ओके, सो इट हैज टू टाइप्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं, अभी जो मैंने वर्ड लिखा था वही लिखता हूं, अनएजुकेटेड।
अब अनएजुकेटेड में 3 वर्ड छुपे वाले हैं, एक है अन, एक है एजुकेट और एक है ईडी। ओके, लास्ट में ईडी लगाए वाला है, उसको एक्स्ट्रा अटैच करने वाला है। सो अब ये अन का कोई मीनिंग नहीं है, एड का कोई मीनिंग नहीं है जब तक उसको इस फ्री मॉर्फिम के साथ जोड़ा ना जाए। फ्री मॉर्फिम को सेंट्रल मॉर्फिम भी कहा जाता है या मरकजी मॉर्फिम, ओके, सेंट्रल मॉर्फिम कहा जाता है, या फ्री मॉर्फिम को आप मेन मॉर्फिम भी कह सकते हैं। ओके, सो अब मेन मॉर्फिम से पहले अगर कुछ अटैच वर्ड है, मेन मॉर्फिम से पहले, जैसे मेन मॉर्फिम यहाँ पर है एजुकेट, और एजुकेट से पहले हमने क्या लगाया, अनएजुकेट। ओके, सो मेन मॉर्फिम से पहले अगर कुछ आया तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और मेन मॉर्फिम के बाद में यहाँ पर ईडी लगे वाला है, तो मेन मॉर्फिम के बाद में अगर कुछ अटैच करे तो उसको बोला जाता है सफिक्स। समझ में आया यहाँ तक? प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है? मेन मॉर्फिम से पहले अगर कुछ अटैच करे तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, प्री पहले पोजीशन पर, ओके, और मेन मॉर्फिम के बाद में अगर कुछ अटैच करे तो उसको बोला जाता है सफिक्स। और मैं कुछ वर्ड्स देता हूं यहां पर, अनइम्पॉर्टेंट। अब ये अनइम्पॉर्टेंट में 2 वर्ड छुपे वाले हैं, अन और इम्पॉर्टेंट। अब यहां पर इंपोर्ट ऐसा नहीं आएगा, हाँ, इंपोर्ट अगर लिए तो दूसरा वर्ड बन जाएगा, दूसरा वर्ड है। यहां पर मेन वर्ड है इंपॉर्टेंट और उसके पहले कुछ लगे वाला है अन, इसका मतलब ये वर्ड के अंदर प्रीफिक्स लगे वाला है। और एक वर्ड देता हूं मैं, इंटरनेशनल। अब ये वर्ड के अंदर देखो 3 वर्ड छुपे वाले हैं, एक है इंटर, दूसरा है नेशन और तीसरा है अल, इंटरनेशनल। अब देखिए, अब ये इंटर का मीनिंग है और नेशन इसका भी मीनिंग है। इसका मतलब इस वर्ड के अंदर 2 फ्री मॉर्फिम है, एक है इंटर और दूसरा है नेशन, और इसके अंदर एक वर्ड छुपे वाला है अल ये है सफिक्स। ओके, अगर हमने सिर्फ नेशनल अगर लिखे तो यहां पर 2 वर्ड होते हैं, एक होता है नेशन और एक होता है अल। तो अल का तो कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये अफिक्स है। अब मेन वर्ड के बाद आने वाला है, इसलिए ये क्या है, सफिक्स है। ओके, सो नेशन, नेशनल। ओके, सो ये इसके अंदर जो है तो ये सफिक्स है। यहां तक समझ में आया? अब फिर से सफिक्स के 2 टाइप्स है, सफिक्स के 2 टाइप होते हैं। एक सफिक्स होता है डेरिवेशनल सफिक्स, डेरिवेशनल सफिक्स, और दूसरा होता है इनफ्लेक्शनल सफिक्स, इनफ्लेक्शनल सफिक्स। देखिए, सफिक्स के फिर से 2 टाइप है, इनफ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल। अब सफिक्स क्या है, ये अटैच्ड है, अफिक्सेस का एक टाइप है। मेन मॉर्फिम के बाद अगर आया तो उसको बोला जाएगा सफिक्स, और सफिक्स के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, डेरिवेशनल एंड इनफ्लेक्शनल। अब डेरिवेशनल और इनफ्लेक्शनल क्या है, देखिए, ऐसे सफिक्स जिसमें ईडी लगा हुआ हो, या ऐसे सफिक्स जिसमें प्लूरल वाला एस लगा हुआ हो। जैसे अगर यहां पर बॉय है तो बॉयज, ओके, सो यहां पर ये बॉय सिंगुलर है और बॉयज लगाए बाद ये बन गया प्लूरल। तो ऐसा सफिक्स जिसके लगने से तादाद या टेंस बनता है, तादाद या टेंस अगर बनती है तो उसको कहा जाएगा इनफ्लेक्शनल सफिक्स। एस या ईडी लगता है इसको। इससे क्या होता है, तादाद पता चलती है या फिर टेंस पता चलता है। अब टेंस कैसा, देखिए, जैसे ये है प्ले, अब इसको अगर हमने, ये जमाने हाल हो गया प्ले, अब इसको हमने ईडी अगर लगाए प्लेड तो क्या हो गया, जमाने माजी बन गया। सो ये है इनफ्लेक्शनल सफिक्स, ऐसे सफिक्स जिसके लगने से एक तो तादाद बदलती है, सिंगुलर का प्लूरल बन जाएगा, या फिर जमाना बदलता है, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा वगैरह। ओके,
सो जमाना अगर बदला, टेंस में अगर फर्क पड़ा या तादाद में अगर फर्क पड़ा तो उसको कहेंगे इन्फ्लेक्शनल सफिक्स। लेकिन अगर मीनिंग बदल गए तो उसको बोला जाएगा डेरिवेशनल सफिक्स। जैसे नेशन देश या राष्ट्र, और नेशनल राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। सो ये हो गया डेरिवेशनल सफिक्स। इसके अंदर मीनिंग बदल जाता है, मीनिंग जो है तो बदल जाता है। सो डेरिवेशनल सफिक्स जो है तो मीनिंग चेंज करता है। जैसे नेशन था राष्ट्र और उसका बन गया राष्ट्रीय। ओके, सो यहाँ पर इन्फ्लेक्शनल सफिक्स मतलब तादाद बदलती है या टेंस बदलता है तो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स। और अगर उसके मीनिंग में फर्क पड़ता है, नया वर्ड बनता है। नया वर्ड बनने का मतलब क्या है? नेशन पहले था नाउन, है ना, लेकिन अब नेशनल में नाउन नहीं रहा। सो इस तरह उसके मीनिंग में फर्क पड़ गया। और ऐसे डिक्शनरीज में कई सारे नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। वहां पर डिक्शनरी में आपको बॉय का बॉयज नहीं मिलेगा, डिक्शनरी में वो वर्ड्स बॉय है तो बॉयज नहीं मिलेगा, है ना। यानी इन्फ्लेक्शनल सफिक्स के लिए अलग से डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डेरिवेशनल सफिक्स में डिक्शनरी में वो वर्ड्स मिलेंगे, नेशन भी वर्ड मिलेगा, नेशनल भी वर्ड मिलेगा। ओके, सो in this way today we have studied morphology. Okay, morphology, I'm just going to conclude it. Morphology, what does it mean? Morphology, it consists of two words, morpheme plus logos. Logos means science, morpheme means word. Now what do you mean by morpheme? First of all, in the first position it comes phoneme, after that it comes alphabet. Then after the alphabet it has morpheme. Then after that morpheme it has a word. Okay, after word it phrase, after phrase sentence, after phrase clause, then sentence. Okay, so morpheme means word, but there is difference between morpheme and word. Morpheme may have meaning, may not have meaning. मतलब मॉर्फीम के लिए मतलब आएगा जैसे जरूरी नहीं, आ भी सकता नहीं भी आ सकता। जैसे हमने अगर ये वर्ड देखे एड का क्या मीनिंग है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अल का क्या मीनिंग है? कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे दो मॉर्फीम है, नेशन भी एक मॉर्फीम है, अल भी एक मॉर्फीम है। लेकिन यहाँ पे दो वर्ड नहीं है, नेशन एक वर्ड है लेकिन अल एक वर्ड नहीं है। दोनों मॉर्फीम है लेकिन दोनों वर्ड नहीं है। तो मॉर्फीम का मतलब है, मतलब निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। ओके, तो इस मॉर्फीम में मतलब निकल रहा है और इस मॉर्फीम में मतलब नहीं निकल रहा। सो मॉर्फीम की डेफिनेशन क्या है? इट मे हैव मीनिंग, मे नॉट हैव मीनिंग। ओके, सो मॉर्फीम की स्टडी करने वाले जो साइंस होता है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और मॉर्फीम दो टाइप्स के होते हैं, फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम मतलब ऐसे मॉर्फीम जिसको मीनिंग निकालने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती, इसकी खुद की मीनिंग रहती है। जैसे यहाँ पे वर्ड है नेशनल, तो नेशन का खुद का मीनिंग है, नेशन यानी देश या राष्ट्र, तो इसका मीनिंग है। लेकिन यहाँ पे एक फनीम है, मॉर्फीम है अल, इसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक इसको नेशन के साथ जोड़ा ना जाए या किसी वर्ड के साथ फ्री मॉर्फीम के साथ जोड़ा ना जाए। सो फ्री मॉर्फीम इंडिपेंडेंट मॉर्फीम है, आजाद मॉर्फीम है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन बाउंड मॉर्फीम को इसकी जरूरत है, जब तक फ्री मॉर्फीम के साथ जोड़ा ना जाए उसमें मीनिंग नहीं निकलती। सो इस तरह से मॉर्फीम के दो टाइप्स हमने देखे, फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम। ओके, फर्दर जितने भी बाउंड मॉर्फीम्स है, अब ये जो फ्री मॉर्फीम है इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स वगैरह वगैरह पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्री नाउन के टाइप्स आएंगे। ओके, और बाउंड मॉर्फीम जो है, जितने भी बाउंड मॉर्फीम है वो अफिक्सेस है, वो किसी पर डिपेंड है। और अफिक्सेस के फर्दर दो टाइप होते हैं। अगर मेन मॉर्फीम के पहले आया तो प्रीफिक्स कहलाता है, मेन मॉर्फीम के बाद में आया तो उसको सफिक्स कहते हैं। सफिक्स के फर्दर दो टाइप होते हैं, डेरिवेशनल